السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی عاصم میاں صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت سنا مفتی شہر رامپور کا انتقال ہو گیا۔ مفتی شہر رامپور کون؟ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب۔ اصل میں ہم ان کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتے نہیں ہیں، وہ لوگ سلی کلی زیادہ ہیں وہ لوگ۔ شرکت تو کر سکتے نا جنازے میں۔ اصل میں کیا ہے کہ تاج الشریعہ کا ایک شعر ہے، ہاں صلح کلی۔ سلی کلی نبی کا نہیں سنی ہے، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، تو ہم لوگ ان سے فرق تعلقات رکھنا واجب سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان تو مان سکتے ہیں نا جیسے صلح کلی کو بھی۔ اب بال مدل ہیں وہ لوگ، گمراہ گر ہیں۔ ابھی رامپور کی جامع مسجد میں ایک مولوی ناصر ہیں، ہاں ہاں تفسیر انہوں نے کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی غلط تشریح بیان کی۔ کیا تشریح کی؟ انہوں نے یہ کہا، میرے پاس کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ رام بھی نبی ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ رام بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں، جی یہ نہیں کہا ہوں گے۔ اب ہو سکتے ہیں کہ مراد کیا ہے کہ انہوں نے مطلب یہ کہ آدھا یقین تو اسی میں آ جاتا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ مجھے ڈبو دو اس دریا میں، یہ کہا ہے آنے دو یا آپ ڈبو۔ بات سمجھ رہے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں سنیے، کتاب کے اندر یہ بات لکھ رہی ہے بہار شریعت میں، کسی بھی انسان کو نبی ماننے کے لیے بغیر دلیل کے ماننا جائز نہیں ہے۔ ہاں جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی تو اختلاف ہے کہ نبی ہے کہ ولی۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ہاں تو یہ رام تو سمجھ لے کہ ہندوؤں کے پیشوا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب ایشور، ایک صاحب نے ایسا کہا کہ ایشور اللہ کے ناموں میں سے ہے، جی تو کیا ایشور اللہ کا نام ہے صاحب؟ ایشور، ایشور کو ایک عالم صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایشور۔ دیکھیے ایشور جو ہے شاید یہ کسی اور زبان میں بولا جاتا ہو، لیکن یہ ہے کہ مسلمان تو زیادہ تر اللہ ہی کہتے ہیں، خدا ہی کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایشور کہے تو ناجائز ہے نا صاحب؟ ایشور نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، خدا کہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ایشور اللہ کا نام ہے، ایشور کے پکار سکتے ہیں، تو وہ توبہ کرے۔ ایشور جو ہے عیسائیوں کا شعار ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ایشور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، فتح برکت۔ اور یہ مفتی شریف لوگ صاحب نے اس کا حوالہ لکھا ہے، فتح شارح بخاری جلد اول، آپ پڑھنا صفحہ 290 کے آس پاس۔ اگر اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے تب تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ مطلب اعلیٰ کا نام آتے ہی سب کچھ تسلیم، اور اعلیٰ نہ کرے تو نام نہ آئے تو سب غلط۔ ارے بھائی اعلیٰ حضرت یہ کون سی بات ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کو دین و ایمان بنا کے رکھ دیا؟ میری بات سنیے، اعلیٰ ابھی آپ حضرت کہہ رہے تھے کہ ایسا عیسائیوں کے شعر ہے، اعلیٰ کا نام آ گیا تو سب جائے گا۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایک محتاط عالم دین کا نام ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عیسائیوں کا شعار ہے ایشور کے نام۔ زیادہ تر مطلب عیسائی لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اگر ایسا لکھا، وہ ہم سے بڑے عالم ہیں، اگر ان کی ضرور نہیں ہے کہ بھئی ہر بات ہمارے علم کے اندر موجود ہو۔ صحیح بات، بالکل بہت اچھی بات۔ ابھی میرے سامنے یہ بات آئی تو اس کو ہم نے تسلیم کر لیا۔ جیسے اظہری میں صاحب نے دعوت اسلامی والوں کا بھی رد کیا ہے، صلح کلی نبی، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، اظہری میں نے کہا کہ یہ مسلک اعلیٰ کے مبلغ ہیں، جی تو پھر ان کے بارے میں کیوں صلح کلی ہو جاتے ہیں لوگ؟ ان کے ہی مرید صلح کلی ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اپنے پیر سے بغاوت کر رہے ہیں نا صاحب۔ جی جیسے اظہری میں نے جب رد کیا کہ دعوت اسلامی والے اعلیٰ کے مسلک کے مبلغ نہیں ہیں، اور الیاس قاضی کے آدمی نے بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دے۔ استغفر اللہ۔ تو اب اس پر کون سا فتویٰ لگے گا؟ آپ کس سے مرید ہیں؟ میں تو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں حضرت آدم علیہ السلام کا مرید ہوں۔ کس کا؟ میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ ارے بھائی یہ بتائیے، بظاہر آپ نے کس کو حضرت پکڑا آدم ہوا علیہ ہے؟ السلام کا خلیفہ ہوں۔ اچھا، میرے والد اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور میں ان کا خلیفہ ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے، میری بات سنیے، آپ ارشاد فرما، حکم۔ آپ یہ بتائیے، آپ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیڈکر،
हाँ। इन चारों पे जो आपने हुक्म कुफ्र लगाया है, आप इनको काफिर मानते हैं या नहीं? अब इन चारों के बारे के अलावा जैसे ये देवबंदी है ना, वहाँ पर जहाँ पर अरब में तो अभी देवबंदी है, नदवी है, नजदी बताए नजदी है, तो ये किससे फतवा ले गया है जो शामल में? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इन चारों को काफिर मानते हैं या नहीं? ये तो हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह जिनके मुंह से अनल हक निकला था, आला हजरत ने कहा कि हम उनको ये मानेंगे जैसे दरख्त से आवाज आई थी नहीं अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो कहा कि इसी तरह हम मंसूर अल्लाह के बारे में मानेंगे। मेरे सीधे सीधे सवाल का जवाब तो फतवा दीजिए। तो कुफ्र का उन पर था, तो उनको क्यों नहीं माना जा रहा काफिर? आला हजरत उनको भी वली मान रहे हैं, दलील दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं। आप देखिए, आप राह फरार इख्तियार कर नहीं, रहे राय हैं। फरार क्यों? जब आप एक तरफ कह रहे हो थानवी साहब को काफिर मानो और हुसैन मंसूर अल्लाह को भी तो काफिर कहा था आलिमों ने, तो उन्हें आप काफिर क्यों नहीं मान रहे? अरे भाई ये बताइए, आप चारों को इनको मानते हैं या नहीं, हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह पर भी तो कुफ्र का फतवा आलिमों ने लगाया था, आम आदमी ने थोड़ी लगाया था। हम तो मानते हैं कि इन चारों को काफिर मानते हैं हम तो। फिर हजरत हुसैन मंसूर अल्लाह को आप क्या मानते हैं? मंसूर हल्लाज का जो मामला है वो उनका मामला समझिए कि मजजूब वाला था। तो मजजूब वाला था, फिर काफिर होने का फतवा क्यों लगाया आलिमों ने? किसने लगाया? आलिमों ने लगाया। हालात खुद मान रहे हैं कि हम तो उनको वली मानते हैं, मतलब वली माना हालात में। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने उनका जिक्र किया है कि अच्छा, फिर ये तावीलें करना क्या वो आलिम नहीं जानते थे? मैं आपको बता रहा हूँ मंसूर हल्लाज के बारे में ये लिखा है इमाम अहले सुन्नत ने कि उनकी एक बहन थी जो मारिफत में उनसे ज्यादा थी। अच्छा था। वो जो है रात में जाती थी, तो एक दिन उनको शक हुआ मेरी बहन कहाँ जाती है। हाँ। तो जब वो रात में गए उनके पीछे पीछे, तो एक आसमान से किंदील उतरती थी। अच्छा था। अब उसमें जो है एक नूर होता था। अब वो नूर मतलब पी रही थी, अपने अंदर समा रही थी, तो पीछे अलमसम आधा वो प्याला पी चुकी थी। हाँ। तो आधा रह गया। तो मंसूर हल्लाज ने कहा बहन थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। हाँ। तो जब उन्होंने मतलब ये कि जब छोड़ा उनके लिए आधा, तो मंसूर हल्लाज ने उसको पी लिया। अच्छा था। तो मंसूर हल्लाज ने उनको पीने के बाद जो है ना, हाँ। हाँ। तो उन्होंने मालूम है क्या जुमला कहा अपनी जबान से? क्या कहा? उन्होंने कहा अनल अहक, इसमें तफजील है, ये इसमें तफजील, अनल अहक। अनल अहक सबसे ज्यादा हक पर है। यानी अरे भाई ये इसका तर्जुमा ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर ये तावील है, फिर ये काफिर होने का जो फतवा दिया था उन्होंने ये तावीलें क्यों नहीं की? हालात ने इसके बाद में तावीलें क्यों? वो तो उनके जमाने के थे ना आलिम लोग। इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। हाँ, अना अहक। अनल अहक कहा, उसका मतलब ये है कि मैं इस प्याले को पीने का ज्यादा हकदार था मैं। हाँ, तो हकदार था। तो ये तावील तो वो आलिम भी जानते थे ना जिन्होंने काफिर होने का फतवा लगाया। अब जब वो अनल अहक कहने लगे, अनल अहक अनल अहक अनल अहक, तो उनके जबान पे कहते रटते रटते अनल हक आ गया। हाँ, फिर जब वो उनकी जबान पे अनल हक आ गया तो लोगों ने समझा भाई इससे तो आवाम बहक जाएगी, तो इस वजह से कुफर का फतवा लगाया। तो फिर लेकिन जो है कि उस जमाने में भी अल्लाह वाले जानते थे कि ये हक पर है मंसूर हल्लाज। लेकिन कुफर का फतवा तो लगा ना। कुफर का फतवा इसलिए लगाया कि अपनी उनकी जबान तो पर अनल हक काफिर क्यों नहीं माना जा रहा? जब कुफर का फतवा है काफिर मानना पड़ेगा ना फिर वही वाली बात। अरे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नहीं, जैसे कुफर का फतवा थानवी साहब पे, नानवी साहब पे, गंगोई साहब पे हम भी मानते हैं, तो ऐसे ही फतवा अनल हक कहने पे मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे है। मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफर का फतवा है, उबैदुल्लाह खान आजमी पर कुफर का फतवा है, और कारी रही साहब जो बम्बई के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं दुनिया के, उन पर गुमराहियत का फतवा है कि देवबंदियों के साथ बैठता है ये उलमाए कौंसिल में, और लोग जामिया अज़हर में जाके 3 साल बैठते हैं देवबंदियों के साथ। तो साहब ये समझ में नहीं आ रही बात। जामिया अज़हर में कौन बैठता? अरे अपने बरेलवी आलिम बैठते हैं देवबंदियों के साथ, खाते हैं पीते हैं, रबिया खाते हैं, उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं सुलह कुल्लियों के साथ। अभी आप अज़हरी में आके शेर पढ़ रहे थे ना, सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। तो फिर ये जामिया अज़हर में कौन पढ़ने जाते हैं? सब देवबंदी। 90% 95% देवबंद वाले पढ़ते हैं। पहले खड़े होते हैं वो लोग, हय्या सलाह से पहले खड़े होते हैं, अंगूठी नहीं चूमते, या वो सलमदर नहीं कहते, फतावा हुसामुल हरमैन को नहीं मानते, देवबंद वालों को मुसलमान मानते हैं वो लोग। तो वो भी काफिर हुए साहब क्या? अरे भाई आपने जो मुझे फोन किया है, नहीं, आप सुलकुलियत वाली बात मत इख्तियार करो। अब आप बताओ जामिया अज़हर वाले सुलकुलियों क्या हुए? काफिर हुए या मुसलमान?
जामे अजहर वालों को तो आप छोड़िए, क्यों छोड़िए? ऐसे महबूब आलम साहब को भी छोड़िए, जो रामपुर के सबसे बड़े मुफ्ती थे। अरे भाई रामपुर हमारे करीब में, जितना मैं जानता हूँ ना, आप इतना आप नहीं तो जानते क्या हैं। वो गुमराह करने वाले थे क्या मुफ्ती महबूब साहब? आप ये बताइए, जो इंसान ये कहे कि सारे फिरके हक पर हैं, वो हक पर हो जाएगा? अरे हजरत, ऐसे क्या कौन सी गुस्ताखियां दिख रही हैं जिससे एकदम आप काफिर मान लेते हो मुसलमानों को? हम जो है उनको सुलह मानते हैं। सुलह कुल्ली मुसलमानी तो है। वो जो है इंतहाई कुफ्र के करीब है, उनके ऊपर लुज़ूम कुफ्र है। लुज़ूम में कुफ्र है तो फिर जितने जनाजा पढ़ेंगे सब काफिर हो जाएंगे। आप जो हैं, अरे आप ये बताइए, आप उनका जनाजा पढ़ना चाहते हैं, क्या मसला आप? अरे मतलब लाखों लोग पढ़ेंगे, हजारों लाखों जितने भी पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के सबसे अब बड़े लाखों मुफ्तियों में। लोग अब लाखों लोग दाढ़ी मुंडा रहे हैं, तो वो जायज हो जाएगा क्या? अरे साहब, हजारों नहीं तो कितनी बड़ी तादाद, पूरा रामपुर शहर नमाज पढ़ेगा, आसपास के लोग आएंगे, तो ऐसा थोड़ी सब काफिर हो जाएंगे। लुज़ूम में कुफ्र का मतलब यह है कि जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ ले वो भी काफिर हो जाए। ऐसे तो पूरा रामपुर ही काफिर हो जाएगा, फिर कौन मुसलमान बचेगा साहब? देखिए ऐसा है, अगर किसी देवबंदी के या सुलह कुल्ली के कोई आवाम नमाज पढ़ रही है तो उसके ऊपर हुक्म कुफ्र नहीं होता। देखो, मुफ्ती शाहिद मियां साहब भी आजम खान से ताल्लुक रखते थे। आजम खान भी तो सुलह कुल्ली हैं, आजम खान भी तो सुलह कुल्ली हैं। क्या मुफ्ती शाहिद मियां की उनसे दोस्ती नहीं थी आजम खान से? आप रामपुर में तो सभी सुलह कुल्ली हैं, ज्यादातर 98% सुलह कुल्ली है रामपुर में। सबकी रिश्तेदारियां हैं आपस में एक दूसरे रामपुर में। हजरत साहब इस रिवायत के बारे में क्या कहेंगे? एक लोंडी मदीने की लोंडियों से आपका हाथ पकड़ के जहाँ चाहती ले जाती। एक औरत ने अर्ज किया, मुझे आपसे कुछ काम है। राह में बैठ गए, जब तक वो बातें करती रही, बैठे सुनते रहे। ये अल्लाह के रसूल के बारे में लिखा है सफ़ा 296 में कि एक लोंडी मदीने की लोंडियों से आपका हाथ पकड़ के जहाँ चाहती ले जाती। एक औरत ने अर्ज किया, मुझे आपसे कुछ काम है। राह में बैठ गए, जब तक बातें करती रही, बैठे सुनते रहे। क्या जाहिर इबारत को गलत माना जाएगा? खैर क्या नाम है, मैंने आपको बहरहाल अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। अल्लामा नकीली खान रहमतुल्लाह लिखा है सफ़ा 296 तफ्सीर अलमशाह जिल्द अव्वल में। अब ऐसे जाहिर कुफ्र के खतमे लगाओ तो इसमें भी है ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें आला हज़रत और मुफ्ती आज़म उस्ताद शरीयत ने बता दिया है, हम उनके मौक़िफ़। तो आला मुफ्ती आज़म ने भी कहा है कि इनकी हुकूमत में हज मत करो साहब, नई सी हुकूमत में फिर हज करने क्यों जाते हो? मत करो हज क्यों नहीं करें? हज तो कर दे, हुकूमत क्यों नहीं करें? क्यों? मुफ्ती आज़म ने मना किया कि हुकूमत में हज मत करो जब तक ये हुकूमत है नहीं होगी। हज मत करो, तुम्हारा हज करने जाओगे तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा। बोलो, चलिए ठीक है, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। खाना खाने क्यों जा रहा हो? हज करने क्यों जा रहा हो? जब बर्बाद होगा पैसा लिखा मुफ्ती आज़म ने। देखिए आपका ये इरादा, आप